বিগত বেশ কয়েকদিন নয়, কয়েক মাস নয়, কয়েক বছর ধরে বিএসএনএল এর ঠিকাকর্মী যারা আছে তারা কিন্তু আন্দোলনে নেমেছে তাদের চাকরি বাঁচানোর দাবি নিয়ে। তাদের একটাই অভিযোগ যে তাদেরকে ছাঁটাই করা হয়েছে বিনা নোটিশে, এমনটাই অভিযোগ, এবং সেই অভিযোগ সরাসরি কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে। এবং এই মুহূর্তে রয়েছে নিউজ ইন্ডিয়া নাও 365 ফেসবুক পেজ লাইভে আপনাদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ। এই মুহূর্তে আপনাদের সামনে সেই তথ্য, আন্দোলনে নেমেছে কিন্তু আবারও আজকে এই মুহূর্তে উপস্থিত রয়েছে কিন্তু টেলিফোন ভবনে, কলকাতার ডালহৌসি চত্বরে সেই টেলিফোন ভবনে যারা এই মুহূর্তে আন্দোলনে নেমেছে এবং তাদের সেই বক্তব্য, সেই দাবি নিয়ে, সেই অভিযোগ নিয়ে যে কেন এইভাবে কিভাবে বিনা নোটিশে তাদেরকে ছাঁটাই করা চলছে এবং বিগত বেশ কয়েক মাস, কয়েক বছর ধরে তারা তাদের পরিবারের লোকের অন্ন তুলে দিতে পারছে না, এমনটাও তাদের দাবি। কিভাবে চলবে, কিভাবে আগামী দিনে তাদের চাকরি ফিরে পাবে, সেই দাবি, সেই অভিযোগ। এবং এই মুহূর্তে আবারও বলছি, কলকাতা টেলিফোন ভবনের সামনে কি বলছেন তারা, তাদের মুখের বক্তব্য এবং কি পরিস্থিতি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু বেশ কিছু লোক জমায়েত। এবং সরাসরি আমাদের লাইভ নিউজ ইন্ডিয়া নাও 365 এর লাইভে আপনাদের সামনে সরাসরি সেই তথ্য তুলে ধরার জন্য। এবং আমরা চলে যাব সরাসরি সেই দিকে। ক্যামেরা পার্সনকে বলবো যে সেখানকার কি পরিস্থিতি এই মুহূর্তে। দেখতে পাচ্ছেন তারা কিন্তু একত্রিত হয়েছে, জমায়েত হয়েছে, তাদের সমস্ত তথ্য এবং তাদের কি বক্তব্য। এবং এই মুহূর্তে কিন্তু এখানে উপস্থিত রয়েছেন তেভাগা আন্দোলনের সেই বিশিষ্ট সমাজসেবী এবং নেত্রী মেধা পাটেকার এই মুহূর্তে কিন্তু উপস্থিত রয়েছেন এবং দেখতে পাচ্ছেন তিনি কিন্তু এখানে উপস্থিত রয়েছেন। এখন আমাদের সাংবাদিক বৈঠক শুরু হচ্ছে। আমি সাংবাদিক এবং সবচেয়ে বলা বাহুল্য তারা কিন্তু সাংবাদিক বৈঠক দেখেছে এবং কি বলছেন তাদের বক্তব্য আমরা চেষ্টা করব তাদের বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরার জন্য। आप बैग जरा बाजू में डाल दीजिए। You come and you open your mouth. मैं स्टैंड अप हो जाए पर पहले एक वर्कर को बोलने दूं। আমরা সমস্ত শ্রমিককে অনুরোধ করছি আপনারা জায়গায় বসুন, আপনারা কেউ সামনে এগিয়ে আসবেন না। আমাদের উল্টা পুল্টা नहीं बोलना। আপনারা আপনাদের জায়গায় বসুন। चलो 2 मिनट में जरा उस बाजू ये बोलेंगे वर्कर। बैठ के बोले ना, बैठ के बोले ना, बैठ के बोले कि खड़े रह के बैठ के बोले जिसमें आएगा मैं वही बोल रही थी। हम रात में रात में সুবিধা আবার সব এক If you don't mind, ওনাদেরকে একটু সহযোগিতা করুন, আপনারা একটু দূরত্বটা বজায় রাখুন। जरा सा उधर ले लो, कुर्सियाँ उधर ले लो और আপনারা আপনাদের মধ্যে দূরত্বটা একটু বজায় রাখুন। হারালে তো আবার ঘুম একজনকে সবাই ধরতে হবে। ধরবে না আলাদা কিছু না, আমাদের হ্যাঁ দাঁড়িয়ে করো না ভাই, बोलो बोलो। আমি একটা জিনিস বের করছি তো করে দিই। রেডি এ করতে পারা করতে হবে না ধরলে ধর ডাইরেক্ট এক্সেলেন্ট করো না একেবারে দাঁড়িয়ে করে নেবো, ঝামেলা। হ্যাঁ এটাই টাইটও হয়ে যাবে। अरे you are the youngest and फिर भी you take long time. No. Actually they have some technical issue that is. Sure. Youngest are more techno savvy also. Vedaji worked very well. From a long time Vedaji attached to his those pens. चलो दीदी 1-2 मिनट। बहु पहले 2 मिनट कॉल का जगह है। ऑल ओके? पहले हम लोग रेडी
आपकी पहचान আমি মনোজ কুমার ঠাকুর বিএসএনএল বাঁচাও কমিটি এজ এ কনভেনার। আজকে আমরা এখানে যে এসেছি তার আসল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে আমরা দীর্ঘ 25 বছর 26 বছর ধরে এই ডিপার্টমেন্টকে নিজের জীবনটা দিয়েছি, শ্রম করেছি। তার ফলে আমাদেরকে উইদাউট এনি কোনো নোটিশ লেবার অ্যাক্টকে না ফলো করে আমাদেরকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদেরকে স্টিল নাও কোনো একটা টার্মিনেশন লেটার পর্যন্তও দেওয়া হয়নি। তারপরে তার সত্ত্বে সত্ত্বে আমাদের 50 জন লোক মারা গেছে, মানে অনাহারে। তার মধ্যে 13-14 জন কমিটেড সুসাইড করেছে। তা আমাদের এটাই দাবি হচ্ছে কি আমরা জিসিএল প্রথায় কাজ করতাম, আমাদেরকে কাজে বহাল করা হোক। আমরা কি আমাদের তো কি দোষ করেছি কি আমাদেরকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে। এবার হচ্ছে কি কেন্দ্র সরকার যে আমাদের পার্মানেন্ট স্টাফদের যেটা 80,000 লোককে দিয়েছিল বিআরএস, কিন্তু আমাদের একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে কি ঠিক আছে ওনারা তো এই যে হিউজ মানি নিয়ে এখান থেকে চলে গেলেন, কিন্তু সব দিক থেকে পুরো ডিপ্রাইড আমরা হলাম। আমরা আজকে পুরো রাস্তায় কোনো জায়গায় নেই, আমাদেরকে কাজেও নিচ্ছে না, আমাদেরকে না যা গ্র্যাচুইটি বাকি আছে সেটা বা যেটা প্রভিডেন্ট ফান্ড আছে সেইগুলো, এমনকি এসআই পর্যন্ত আমাদের বন্ধ আছে। এরপরে আপনাদের যা ডিটেলস আছে আমাদের মেধা তাই বলবেন। আমার নাম হচ্ছে মনোজ কুমার ঠাকুর, এজ এ কনভেনার অফ বিএসএনএল বাঁচাও কমিটি। हाँ वर्कर जेसीएल वर्कर खड़े नहीं हिंदी के बांग्ला দিদি কি বাংলা পারবেন? चल छे चलबे তাহলে আমি হিন্দি বলছি পুরো आज बीएसएनएल बचाओ कमेटी के तरफ से यहाँ टेलीफोन भवन पर कलकत्ता में जो धरना हो रहा है वो 3 साल के संघर्ष के बाद का एक बहुत महत्व का कार्यक्रम है। हम चाहते हैं कि भारत संचार निगम लिमिटेड जो आज मरते हुए दम खा रहा है, उसने अपने ठेका मजदूरों को आत्महत्या के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। आज किसान आंदोलन ने ये दिखा दिया है कि किसान भी अब आत्महत्या नहीं करेंगे, वो जन आंदोलन से अपना हक लेके रहेंगे। वही मुद्दा सभी सार्वजनिक उद्योगों का मुद्दा है। आज पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मोदी सरकार जो बेच रही है, वो चाय बेचते बेचते देश बेचने वाले हो गए हैं। लेकिन बीएसएनएल का संघर्ष अलग अलग यूनियंस के द्वारा जारी है, लेकिन ये एक जन आंदोलन है और जन आंदोलन के मार्ग पर अहिंसा और सत्य के आधार पर चलते हुए हम ये कहना चाहते हैं कि मिनिमम ऑफ वेजेस एक्ट सेक्शन 20, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट सेक्शन 15, इसका पूरा उल्लंघन हो रहा है। सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए आज जबकि 29 कानून तो मोदी सरकार ने वापस लेने की घोषणा की है, पर अभी 4 नए कोड्स नहीं आए हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स के आधार पर पूरा देश चलाने का उद्योगपति ने जो चाहा है वो एक बात है, पर ये तो आज भी पब्लिक सेक्टर कंपनी है और उसने सभी कानूनों का पालन करना चाहिए। आज 4600 जो ठेका मजदूर थे उनको अलग अलग प्रकार से निकाल दिया, वो भी गैर कानूनी प्रक्रिया के द्वारा। दूसरा कि जेसीएल की सिस्टम रद्द करके एसएलए नाम की नई सिस्टम लाई, जो कि सही रूप से बीएसएनएल की सर्विस भी कलकत्ता डिवीजन हो कि वेस्ट बंगाल सर्कल हो, सभी एक्सचेंजेस के द्वारा नहीं दे पा रही है। और एसएलए में जेसीएल कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स में से थोड़े लोगों को, कुछ 100 लोगों को ले लिया, लेकिन बाकी सब बेरोजगार हो गए हैं। ये बेरोजगारी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। यूपी में वो रोजगार की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन अगर बंगाल में भी ये ठेका मजदूर जिनकी संख्या कम से कम 3500 से ऊपर है, पूर्णतः बेरोजगार है और 60 ऐसे श्रमिकों की आत्महत्या हो चुकी है। मुझे इसीलिए यहाँ आना पड़ा, क्योंकि हम आत्महत्या नहीं करने देंगे और आत्महत्या के लिए मजबूर करने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। हमारी मांग है कि लॉकडाउन होते हुए भी
मई और जून 2020 में जो इन्होंने काम किया 26 दिन महीने में, उसका पेमेंट नहीं हुआ है। ऑर्डर है, ये है ऑर्डर मेरी कलकत्ता हाईकोर्ट के हाथ में, चेन्नई हाईकोर्ट की ऑर्डर है, बीएसएनएल के मुद्दे पर है कि तत्काल पेमेंट होना चाहिए। वो पेमेंट करना इनकी जिम्मेदारी है। ये अंबानी को, अडानी को, नीरव मोदी को, विजय मल्ल्या को अगर हजारों करोड़ की छूट देते हैं, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को भी मंजूर करते हैं, बैंक्स बर्बाद होती है, पर इनको तो आबादी बढ़ती है, समृद्धि बढ़ती है, लॉकडाउन में भी, तो ये हमको मंजूर नहीं है। इनका पेमेंट होना चाहिए। सितंबर 2019 से मार्च 2020 तक इन्होंने एक एक वर्कर को 26 दिन काम लिया और 13 दिन का या 8 दिन का पेमेंट दिया। ये भी बहुत बड़ा अन्याय और अत्याचार है। हम चाहते हैं कि इनको फिर से रोजगार मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर ने पेमेंट करते समय बीएसएनएल के प्रतिनिधि हाजिर थे क्या, ये हमको पूछना है। कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, ये है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। अभी पहले जो चीफ जनरल मैनेजर थे उनसे हमारी चर्चा हुई थी, हमने 15 दिन का समय दिया था, कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद कोई चर्चा नहीं की, इसीलिए मुझे भी आना पड़ा। मैं जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय के साथ साथ श्रमिक जनता संघ नाम की हमारी यूनियन है, राष्ट्रीय यूनियन है, उसकी अध्यक्षा भी हूँ। पासारुल भाई उत्तर दिनाजपुर से आए हैं, अरुण भट्टाचार्य जी आए हैं। हमारे आज बहुत सारे संगठनों के साथी जो जन आंदोलन के पक्ष में है, वो निश्चित रूप से निजीकरण के खिलाफ है। ये निजीकरण जो अंबानी अडानी जैसे को करोड़ों रुपया लॉकडाउन में दे चुका है, वो अगर बीएसएनएल नहीं पर केंद्र सरकार ने ही दिया है और उनके ही है ये नुमाइंदे, तो हमें जवाब चाहिए, हम जवाब लेके ही रहेंगे। तो आज हमारा कहना है कि इनको फिर से रोजगार दे दो, इनको एसएलए नहीं जेसीएल की मूल सिस्टम चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट लेबरर को जितने दिन काम किया है वो तो तत्काल दे दो और आगे का रास्ता निकाल दो। हम राज्य सरकार से ममता बनर्जी से भी मिलने के लिए आए थे, पर वो उत्तर बंगाल गई हुई है। पर हमारा उनको भी आग्रह है कि वो जबकि मोदी सरकार से चुनाव में लड़ी रही है, तो उन्होंने निजीकरण के खिलाफ भी बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करना चाहिए, और वो करने के लिए श्रमिकों की ताकत ही उनको साथ दे सकती है। तो आज ये बीएसएनएल बचाने के लिए जरूरी इसलिए भी है क्योंकि इनकी करोड़ों रुपयों की प्रॉपर्टी हजारों रुपयों में बेची जा रही है, और कम से कम 78,500 श्रमिकों ने पहले ही वीआरएस स्वीकारा है, कर्मचारी उसमें है, स्टाफ भी है, और उनकी भी हालत खराब है। मुट्ठी भर रोजगार पाते हैं। बाकी तो आपको पता है कि पिछले 1 साल में देश में 1,53,000 श्रमिकों ने आत्महत्या की है, जिसमें कलकत्ता टेलीफोन्स के 60 श्रमिक भी शामिल है। तो हम लोग इनको शहीद मानते हैं। इनकी शहादत जैसे किसानों की शहादत हुई 715, हम संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रहे हैं, हम सब लोग कायम बॉर्डर पर रहते जाते आए हैं। तो हम चाहते हैं कि यहाँ भी सिंघू बॉर्डर जैसी स्थिति पैदा न हो, शहादत मंजूर करे, लेकिन आगे चल के आत्महत्या रोक दे। तो बीएसएनएल बचाओ, देश बचाओ, बीएसएनएल बचाओ, बीएसएनएल बचाओ, और देश बचाओ, देश बनाओ, देश बचाओ, तो देश बचाओ देश बनाओ हमारा नारा है। हम संघर्ष के साथ निर्माण भी करते हैं। इन्होंने ही 20-20, 25-25 साल अपना खून पसीना बहाया है, उससे ये कलकत्ता टेलीफोन्स का टेलीफोन भवन खड़ा हुआ है। तो आज उनका पहला हक होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर्स अगर दोषी है तो उनको सजा होनी चाहिए, पर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को हमको दोषी पकड़ना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे साथ इनके जो भी सबसे वरिष्ठ अधिकारी हो, CMD मैनेजिंग डायरेक्टर दिल्ली लेवल के, वो भी बातचीत के लिए आज नहीं तो कल आने होंगे और जवाब देना होगा। दीदी, ये लोग साल 2 साल से संघर्ष कर रहे हैं, तो अभी तक मसला हल नहीं हुआ। आगे आपका क्या प्रोग्राम है अगर इसी तरह चलता रहा? बस संघर्ष तो अनिश्चितकालीन ही होता है, पर किसानों के जैसे एक ही जगह पे हम 13 महीने डेरा नहीं डाले हैं, पर अगर समय आया तो वैसा भी करना पड़ेगा।
और हम लोग कई सारे प्रकार सत्याग्रह के नर्मदा आंदोलन में कर चुके हैं। 36 साल हुए हैं तो 50,000 परिवारों को पुनर्वास मिल गया है। तो हम जानते हैं कि संघर्ष हरदम लंबा चलना पड़ता है, क्योंकि आज जो सत्ता में बैठे हैं वो कॉर्पोरेटीकरण के पक्ष में है और इसीलिए जियो जीता है और लोग मरते हैं। तो ये हमारे को मंजूर नहीं है। मीरा जी, आप क्या चाहते हैं ये हमारा वेस्ट बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर ममता बंदोपाध्याय ये भी हस्तक्षेप करें, बीजेपी का खिलाफ है जिसका सब कानून बनाया, बिल्कुल। तो या आप इसका साथ जोड़ के एक बड़ा थोड़ा आंदोलन या करेंगे कि क्या? नहीं, हम तो बीजेपी के पॉलिसीज और कानूनों के साथ जो खिलवाड़ चल रही है उसके विरोध में है। हम तो चाहते हैं कि सरकार बदले, इसीलिए कि वो अगर सही विकास के रास्ते पर चल सकते हैं तो आज जो मोदी सरकार की गलत नीतियों का, जैसे 4 कोड्स ला रहे हैं, 29 श्रमिकों के पक्ष के कानून वापस लिए हैं। हम लोग इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल में लड़ने वाले लोग हैं, कैसे लड़ेंगे उन 4 कमजोर कोड्स के संहिता के आधार पर? ये हमारा सवाल है। इसलिए ममता बनर्जी ने जो लड़ाई दे रही है वो सही है, पर उन्होंने हर क्षेत्र में देखना चाहिए कि कॉरपोरेट्स को आगे बढ़ने नहीं दे और जनता की भूमिका को मंजूर करे। वो चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे खदान हो, चाहे टेलीफोन्स हो, चाहे शराब हो, हर मुद्दे पर जनता के साथ देना, यही हम ममता बनर्जी से अपेक्षा करते हैं। বিগত বেশ কয়েক মাস নয় কয়েক বছর ধরে এরা এইভাবে আন্দোলন এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে এবং ছেঁড়া রুটি নিয়ে তারা আন্দোলন করেছে দেখা গেছে, কিন্তু কেন্দ্র সরকার কোনো কর্ণপাত করছে না বলেই দেখা যাচ্ছে, এমনটাই কিন্তু তথ্য উঠে আসছে। তো আপনি এবারে আন্দোলনে সামিল হয়েছেন এবং এই আন্দোলনে আপনার সামিল হওয়ার কারণে কি আগামী দিনে কি এর हिंदी में बोलिए। अगला दिन आप जो इस आंदोलन में शामिल हुए हैं, अगला दिन क्या इसका कोई सुफल कुछ आप सोच रहे हैं कि अगला दिन इसका समस्या समाधान होगा? अगला दिन क्या आज ही हो सकती है? आज ही यहाँ अगर मैनेजमेंट मंजूर करती है कि ये सभी जजमेंट सही हैं तो इनको पेमेंट देना पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्टर से दिलवाना पड़ेगा। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट दिया है क्या? हम जवाब चाहते हैं। इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स पेमेंट देते हैं वर्कर्स को, तब खड़े होने का वहाँ उनके रिप्रेजेंटेटिव के साथ ये काम किया है क्या? हम जवाब चाहते हैं। लोगों ने सितंबर 19 से मार्च 2020 तक अप्रैल महीना एक छोड़ भी दिया तो भी क्या 26 दिन काम नहीं किया है? तो फिर 13 दिन की सैलरी कैसे दी है? हम जवाब चाहते हैं। और हम जवाब चाहते हैं कि ये लोग जिएंगे कैसे? इनका जीने का अधिकार है। आर्टिकल 21 है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का, उसके तहत इनको पेमेंट देना ही पड़ेगा। पर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये तो जीने का अधिकार देते हैं। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार भी इसमें हस्तक्षेप करे, सभी यूनियंस, जन आंदोलन सबको एक करे। ताकत वर्कर्स की होनी चाहिए, हक भी वर्कर्स का होना चाहिए। इसके पहले भी मीडिया बहुत बार उन लोगों के साथ बातचीत करना चाहे थे, मगर उन लोग बात ही करना नहीं चाहते हैं। तो अगला आप कैसे समझ रहे हैं कि इसका हल कुछ समाधान होगा? भाई, इसका हल तो जनतंत्र बचाने में ही होगा, क्योंकि जनतंत्र के स्तंभ है आप सब लोग, जो माध्यम करता है। नहीं चाह रहे। अरे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं बात करते हैं तो ये बेचारे कैसे करेंगे? ये भी आपको सोचना चाहिए। तो आप सब लोगों को भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए, साथ देना चाहिए। हम लोग कोई फंडेड ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है, हम लोग कोई पार्टी के रूप में नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ एक BSNL बचाओ कमेटी के ये जो सभी नुमाइंदे हैं, ये मनोजित भाई है, ये उज्जवल भाई है, अरूप भाई है, और उनके घर की महिला और बच्चे भी इस आंदोलन में आज न कल शामिल होंगे। इस विश्वास के साथ हम इसमें जुड़े। आपको धन्यवाद। संध्या मुखर्जी जी को मैं श्रद्धांजलि आंदोलन चलছে সন্ধ্যা মুখার্জি আর বাপি লাহিড়ী अभी लता मंगेशकर जी को श्रद्धांजलि देकर उन पर एक लेख लिखकर मैं आई हूँ, और यहाँ आकर आज सुबह खबर आई कि संध्या मुखर्जी का भी देहांत हो गया है। ऐसे स्वर
जो एक लता बनकर चढ़ते हैं पूरे देश के आसमान पर और हावी होते हैं तन और मन पर, और जिनके द्वारा प्रेरणा मिलती है, ऐसे सूर शांत होना एक बहुत दुखद बात है। और अभी मैंने संध्या मुखर्जी का एक गीत सुन लिया कि माँ को बेटी क्या कह रही है, कि आज माता पिता को बेटे नहीं देख रहे हैं, इसीलिए भी बेटी बचाना जरूरी है और बेटी ने अपनी माँ बचाना जरूरी है। आज लक्ष्मी की पूजा केवल हो रही है पूंजी और बाजार, और उसमें रिश्ते नातों पर जो कोई सुंदर स्वर सम्राज्ञी एक गीत के द्वारा एक दिल तक ऐलान पहुंचाती है, तो हम उनको सलाम करते हैं। संध्या मुखर्जी का सुर आज शांत हुआ है, पर उनकी प्रेरणा और उनका स्वर गूंजता रहेगा हर बंगाली के कानों में, ये मैं अपेक्षा करती हूँ। और बापी लाहिरी जी भी एक ऐसे क्या थे संगीत दिग्दर्शक कि जिन्होंने भी इन सब लोगों को सही में सूर ही नहीं ताल दे दिया। तो ये सब पुराने पीढ़ी के नुमाइंदे माने जाते हैं। आज जब डिस्को और ऐसे विदेशी ही नहीं पाश्चिमात्य संगीत ने एक प्रकार से कब्जा किया है, तो उसमें भी उनके सुर ही जिंदा रहेंगे और जीवित करने के लिए, रहने के लिए लोगों को प्रेरणा दे देंगे, ये मैं अपेक्षा करती हूँ। दोनों को हार्दिक श्रद्धांजलि। ये आप लोग प्रेस नोट दे रही है? ये आपको इनको जो पत्र दे रहे हैं उसकी कॉपीज दे रहे हैं। ये लीजिए, दो हम हमारे पास अभी पर अभी आ रही है। प्रेस पर 1 बजे মালি আমাদের দেখো একটু মালি মালি দেখো এদিকে ফোকাস বন্ধুরা দেখলেন এই মুহূর্তের যে সেই তথ্য, এবং মেধা পাটেকর আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। পুরো বিস্তারিত তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরলাম এবং তাদের একটাই বক্তব্য যে তারা এইভাবে আন্দোলনে আর কতদিন এভাবে থাকবে এবং তাদের অন্নসংস্থান কি হবে, এবং একের পর এক আত্মহত্যা করেছে এমনটাও কিন্তু তাদের দাবি। তো কি ঘটনা আরো বিস্তারিত এই মুহূর্তে তুলে ধরার চেষ্টাও আপনাদের সামনে, এবং চোখ রাখুন আমাদের পর্দায় নিউজ ইন্ডিয়া নাও 365 এর লাইভে। মাঝখানে কিছু সময়ের জন্য বিরতি নিচ্ছে এবং এরপরে চলে আসবো আরো কিছু বিশেষ তথ্য নিয়ে। ক্যামেরা অরিজিতের সাথে আমি গোপাল শাহ, নিউজ ইন্ডিয়া নাও 365 এর লাইভে। নমস্কার।